اسرائیل کی غزہ میں زمینی کارروائی کی کوشش، حماس نے زمینی حملہ ناکام بنا دیا۔ ایک اسرائیلی فوجی ہلاک، خان یونس کے قریب ایک اسرائیلی ٹینک اور 2 بلڈوزر تباہ۔ امریکی صدر کی جنگ رکوانے کی کوششیں، اسرائیل کی حمایت کا اعلان، کہا اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، اسرائیل کو حفاظت کے لیے جو کچھ درکار ہوگا وہ فراہم کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم سے جنگی قوانین پر عمل درآمد یقینی بنانے پر بات کی، معصوم فلسطینیوں کا نظر انداز نہیں کر سکتے۔ امریکی صدر کے پوپ فرانسس اور اسرائیلی وزیر اعظم سے رابطے، اسرائیل کے تازہ حملوں میں مزید 266 فلسطینی شہید، شہداء کی تعداد 4700 سے تجاوز کر گئی۔ جنین میں مسجد کو نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان اسرائیلی فوج کا فلسطینیوں کو گھر چھوڑنے کا حکم۔ عرب اردن کے نور شمس پناہ گزین کیمپ میں بمباری، 13 شہید کر دیے۔ شام کے ایئرپورٹس پر بھی اسرائیل کی وحشیانہ بمباری، ایئرپورٹ کے 2 ملازمین جاں بحق۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل شروع، وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کو آگاہ کر دیا۔ متفرق درخواست میں بتایا 9 اور 10 میں واقعات میں ملوث 102 افراد گرفتار کیے گئے۔ جو فوجی عدالتوں میں ٹرائل میں قصوروار ثابت نہ ہوا وہ بری ہو جائے گا۔ فوجی عدالتوں میں ہونے والا ٹرائل سپریم کورٹ میں جاری مقدمے کے فیصلے سے مشروط ہوگا۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کی سماعت صبح ہوگی۔ زیر حراست افراد کے لواحقین نے بھی عدالت عظمیٰ سے رجوع کر لیا، درخواستوں میں موقف اپنایا۔ سپریم کورٹ ہمیں مقدمے میں فریق بنائے۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی پر فرد جرم آج عائد ہوگی۔ شاہ محمود قریشی پر بھی فرد جرم عائد کی جائے گی۔ سائفر کیس میں 28 گواہان ہیں۔ فرد جرم کے بعد سرکاری گواہان کی طلبی ہوگی۔ پروسیکیوٹر شاہ خاور کا کہنا ہے کہ فرد جرم کے علاوہ آج کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسناء ذوالقرنین اڈیالہ جیل میں سماعت کریں گے۔ اڈیالہ جیل کے باہر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات ہوں گے۔ عالمی کپ میں ٹیم گرین کا ایک اور امتحان، آج افغانستان سے مقابلہ ہوگا۔ بھارت میں پہلی بار دونوں ٹیمیں مد مقابل آئیں گی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی چنئی میں جم کر پریکٹس۔ پاکستان اور افغانستان میں اب تک 7 ون ڈے میچز ہو چکے۔ افغان ٹیم ایک بھی بار پاکستان کو شکست نہ دے سکی۔ امام الحق کہتے ہیں قومی ٹیم افغانستان کے خلاف مختلف نظر آئے گی، خامیوں کو جلد قابو پانے کی کوشش کریں گے۔ افغان ٹیم کے ہیڈ کوچ نے اسپنر کو اہم قرار دے دیا۔ شاہین افریدی کہتے ہیں ورلڈ کپ ابھی ختم نہیں ہوا، پاکستان کے 5 میچز باقی ہیں، ہم واپس آئیں گے۔ بھارت کی ورلڈ کپ میں مسلسل 5ویں فتح، ناقابل شکست نیوزی لینڈ کو شکست کا مزہ چکھا دیا۔ اہم میچ میں 4 وکٹوں سے ہرا دیا۔ کوہلی نروسائٹس کا شکار، 95 رنز پر کیچ دے بیٹھے۔ روہت شرما کی 46، جڈیجا کی 39 رنز کی اننگز، نیوزی لینڈ کا 274 کا ہدف 48ویں اوور میں پورا کر لیا۔ ڈیرل مچل کی سینچری رائے گاں گئی۔ رچن رویندرا کی 75 رنز کی اننگز بھی کسی کام نہ سکی۔ 5 وکٹیں لینے والے محمد شامی مین آف دی میچ قرار پائے۔ بھارت پوائنٹس ٹیبل پر سر فہرست، نیوزی لینڈ دوسرے نمبر پر چلا گیا۔ انگلش ٹیم کی مشکلات میں مزید اضافہ، اہم فاسٹ بالر ریس ٹوپلے ورلڈ کپ سے باہر، انگلی میں فریکچر کی وجہ سے دیگر میچز نہیں کھیل پائیں گے۔ جنوبی افریقہ کے خلاف میچ کے دوران انگلی پر چوٹ لگی تھی۔ آئندہ 24 گھنٹے میں ہی انگلینڈ روانہ ہو جائیں گے۔ نواز شریف کا آج مری جانے کا امکان، 24 اکتوبر اسلام آباد کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ قانونی ٹیم کے ساتھ بیٹھک، لیگل ٹیم نے آج کے بجائے منگل کو پیش ہونے کا مشورہ دیا۔ مری میں اہم ملاقاتیں متوقع، پارٹی کی مرکزی قیادت بھی ساتھ ہوگی۔ نواز شریف منگل کو عدالتوں کے سامنے سرنڈر کریں گے۔ جاتی عمرہ میں نواز شریف کی مریم نواز، شہباز شریف، حمزہ خاندان سے ملاقات۔ نواز شریف نے پھر واضح کیا کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتے، ساری توجہ ملکی مسائل پر ہے، نون لیگ عوامی ریلیف کے لیے جدوجہد کرے گی۔ شہباز شریف نے کہا قوم آپ کو مسائل اور ترقی کی آخری امید سمجھتے ہیں، آپ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی امیدوں پر پورا اتریں گے۔ اے این پی کے رہنما غلام بلور کی بھی جاتی عمرہ آمد، میڈیا سے گفتگو میں کہا نواز شریف ملک کو معاشی بحران سے نکالیں گے، اداروں نے ساتھ دیا تو ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکیں گے، ملک کو گرداب سے نکالنے کے لیے فوری الیکشن ہونے چاہیے۔ نون لیگ نے مینار پاکستان جلسے کی آفیشل ویڈیو جاری کر دی۔
इंतखाबात मौखर कराने का मकसद इलेक्शन चोरी का मंसूबा है। सिर्फ 2 सियासी जमातों की ख्वाहिश पर इंतखाबात मौखर नहीं हो सकते। पीपल्स पार्टी का वाज़ेह और 2 टोक मौक़िफ़। फैसल करीम कुंडी ने कहा, इलेक्शन कमीशन आइन का पाबंद है, 2 शख्सियात की ख्वाहिश का पाबंद नहीं। सिलेक्शन का बार बार तजुर्बा करने की बजाय इलेक्शन की तरफ आना पड़ेगा। ये सिर्फ आवाम का इख्तियार है, वो किसको मुंतखब करेंगे। अवाम पर गैस बॉम्ब गिराने की तैयारी। गैस की कीमतों में 193% इजाफे का असूली फैसला। आइंदा माह से कीमतों में इजाफे का इम्कान। समरी पीर को इक्तिसादी राबता कमेटी के इजलास में पेश होने की तवक्को। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% तक महंगी होगी। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फिक्स्ड माहाना चार्जेस 10 से बढ़ाकर 400 करने की तजवीज़। बरामदी इंडस्ट्रीज़ के टैरिफ में 950 रुपये इजाफा मुतवक्के। एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ के टैरिफ 2050 रुपये बढ़ाया जाएगा। गैर बरामदी सनतों के लिए 2600 रुपये इजाफा किया जाएगा। CNG के लिए गैस की कीमत 2595 रुपये बढ़ा दी जाएगी। बिजली कारखानों और तंदूरों के लिए गैस कीमत बरकरार रखने की तजवीज़। माली बहरान PIA को ले डूबा। कौमी एयरलाइंस का ऑपरेशन बंद, 50 परवाजें मनसूख। अंदरून मुल्क फ़िज़ाई ऑपरेशन बुरी तरह मफलूज। बैरून मुल्क भी कई परवाजें कैंसल। फ्लाइट ऑपरेशन तमाम दिन बंद रहने के बाद जुज़वी बहाल। PSO का कहना है, PIA को ईंधन की सप्लाई बंद नहीं की, 22 करोड़ की अदायगी की गई। अब तक 64 परवाजों को ईंधन फराहम किया गया। यहाँ पर इस मसले पर जुल्म के खिलाफ दुनिया को ये दिखाने के लिए एक हो गए हैं कि हाँ, हमारे इख्तिलाफात हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन जब जब बात मुसलमानों पर होने वाले जुल्म और खास तौर पर फलस्तीन के निहत्थे मुसलमानों पर इसराइल के जुल्म की बात होगी, हम अपने तमाम इख्तिलाफात रखने के बावजूद एक MKM का फलस्तीन से इजहार यकजहती। हैदराबाद में रैली, बड़ी तादाद में आवाम की शिरकत। इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, इसराइल के खिलाफ हम सब मुत्तहिद हैं। फलस्तीनियों का पानी और खाना बंद है। हॉस्पिटल्स पर बम गिराए जा रहे हैं। उम्मत को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। कराची में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की भी रैली। नुमाइश चौरंगी से अमरीकी कौंसलेट तक रैली निकाली गई। सैकड़ों की तादाद में शहरियों की शिरकत। गजा पर बमबारी फौरी बंद करने का मुतालबा। अंदरून सिंध में मुख्तलिफ शहरों में इसराइल के खिलाफ रैलियां। जड़ावाला में भी जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम फलस्तीन मार्च। आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। मारूफ फ़लस्तीनी शायरा और अदीब हिबा अबू निदा इसराइली बमबारी में शहीद। फ़लस्तीनी वज़ारत सकाफ़त ने शहादत की तस्दीक कर दी। मशरिक़ी वस्ता में हालात शदीद बिगड़ने का ख़तरा। अमरीका का मशरिक़ी वस्ता में मिसाइल दिफाई निज़ाम भेजने का ऐलान। बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने की सलाहियत रखता है। अमरीकी वज़ीर दिफा का कहना है, इजाफी फ़ौज खित्ते में स्टैंड बाय हालत में मौजूद हैं। उधर इराक़ी सूबे अलबेनार में अमरीकी एयरबेस पे रॉकेट हमले। हिज़्बुल्लाह की भी जवाबी कार्रवाइयाँ। मुख्तलिफ तंसीबात को निशाना बनाया और एक इसराइली फ़ौजी मारा गया। गजा में ज़मीनी कार्रवाई पर इसराइल को खबरदार कर दिया गया। हिज़्बुल्लाह ने कहा, हम जंग के लिए तैयार हैं, ज़मीनी कार्रवाई की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। तुर्क सदर का हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया से राबता। जंग बंदी के लिए तुर्क कोशिशों से आगाह किया। अमेरिका में फ़लस्तीन की हिमायत में मुजाहिरे। हज़ारों अफराद सड़कों पर। ऑस्ट्रेलिया, शाम, उर्दन और कई यूरोपीय ममालिक में भी रैलियाँ। तेल अवीव में सैकड़ों यहूदी बाहर निकल आए। इसराइली वज़ीर आज़म से फौरी इस्तीफ़े का मुतालबा। रेड क्रॉस का गजा में डॉक्टर्स भेजने का मुतालबा। ईरान ने अमेरिका को गजा पर प्रॉक्सी वॉर का जिम्मेदार ठहरा दिया। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में अमन कॉन्फ्रेंस। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की शिरकत। अमेरिका और इसराइल के नुमाइंदे ना आए। अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब में सऊदी वज़ीर ख़ारजा का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। फ़लस्तीनी सदर ने कहा, फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती हिजरत पर मजबूर करना नाकाबिले कबूल है। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने गजा में कार्रवाइयों को जंगी जराइम करार दिया।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। गवर्नर हाउस के बाहर शमर रोशन। कामरान टिसोरी ने कहा, मसलूम फलस्तीनियों पर इसराइल के हमले जंगी जराइम हैं। पनाकुजीन कैंपों में चर्चों और अस्पतालों को निशाना बनाया जाता है। इसराइल की सफाकियत का ये सब सबूत हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम अपने मजलूम फलस्तीनी भाइयों के साथ है। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस का बन्नू में पावर शो। परवेज खटक कहते हैं, मौका मिला तो बन्नू को नौशहरा बनाएंगे। स्कूल्स में असातिज़ा की हाजिरी यकीनी बनाएंगे। थाने और पटवार खाने में रिश्वत का खात्मा करेंगे। महंगाई और बदअमनी की वजह से ईमानदार लीडर ना मिल सका। सिर्फ नवाज शरीफ ही नहीं बल्कि दीगर को भी सिक्योरिटी दी जाती है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है, जमान पार्क में भी सिक्योरिटी और जैमर्स थे। चेयरमैन पीटीआई को भी मुकम्मल सिक्योरिटी मिल रही थी। ये भी कहा कि पंजाब भर में असातिज़ा रिहा हो चुके, किसी तालीमी इदारे को बंद करने की इजाज़त नहीं देंगे। तुलबा को एहतजाज में लाना बिल्कुल दुरुस्त नहीं। स्कूल्स की निजकारी की बात बिल्कुल झूठ है। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल को MKM में शमूलियत की दावत। फारूक सत्तार की साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। फारूक सत्तार कहते हैं, MKM से बेहतर प्लेटफॉर्म कोई नहीं। अच्छे लोगों की टीम बनाना ज़रूरी है। मुश्तरका कौमी एजेंडे की मुल्क को ज़रूरत है। मिफ्ता इस्माइल ने सोच विचार के लिए वक्त मांग लिया। समंदरी तूफान तेज ने इंतहाई शदीद दर्जे की शक्ल इख्तियार कर ली। महकमा मौसमियात का छठा अलर्ट जारी। तूफान ओमान से सिर्फ 280 किलोमीटर की दूरी पर, गवादर से फासला 1550 किलोमीटर। तूफान के मरकज़ में हवाओं की रफ्तार 200 किलोमीटर फी घंटा, 45 फीट ऊंची लहरें। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान से पाकिस्तान के किसी साहली मकाम को खतरा नहीं। आज दोपहर तक अपनी मौजूदा शिद्दत बरकरार रखेगा। 23 अक्टूबर की रात यमन की बंदरगाह से टकराएगा। अमेरिका में सिखों का भारतीय सिफारत खाने के बाहर एहतजाज। खालिस्तान के हक में नारेबाजी। सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल की तहकीकात का मुतालबा। आप अल्फाज का चुनाव दुरुस्त करें। फलस्तीनी सहाफ़ी ने बरतानवी मेज़बान को सबक सिखा दिया। वाज़े किया, यह इसराइल हमास जंग नहीं, फलस्तीनियों की नस्ल खुशी है। हमलों में मेरे 30 अजीज और बेहतरीन दोस्त सहाफ़ी जाँ बहक हो चुके। हमास पर बात करने वाले मकबूजा बैतुल मुक़द्दस पर आए रोज़ चढ़ाई पर क्यों खामोश रहे? और गवादर ऑफ रोड रैली जुनेद बलोच के नाम। नादिर मक्सी दूसरे नंबर पर रहे। रंगारंग मेला देखने के लिए दूर दराज से लोग आए। फराटे भरती गाड़ियों के ड्राइवर्स ने कमाल महारत दिखाई। रेस जीतने वालों में इनामात की तकसीम। म्यूजिकल नाइट ने मजा दोबारा कर दिया।